be seated. Please be seated. Thanks be to the name of the Lord. God had given one another blessed day to be in His presence. परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो जाए और प्रभु ने हम सबको एक और दिन दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. We had a wonderful time of worship. हमने एक अनोखा समय आराधना के लिए हमें मिला. I know from English choir they are telling or silently intimating us that we need a little more time. Obviously we will give. इंग्लिश वर्शिप के लोग हमसे खामोशी में ये बात करते रहे कि हमें भी आराधना के लिए थोड़ा और समय चाहिए. वो परमेश्वर ज़रूर देंगे. Good evening to you, all of you. अब सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार. Those who are on online and offline, I greet you in the matchless name of Jesus Christ. ऑनलाइन में हुए लोगों को भी परमेश्वर का नाम से नमस्कार बोलते हैं. Now, today morning we had started a topic called आज सुबह हमने एक विषय शुरू किया, From Slavery to Bond Servant of Christ. दासत्व से परमेश्वर का दास, गुलामी से परमेश्वर का दास बन जाना. Well, before going to the Word of God, can we all have a small prayer? प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें. Abba Heavenly Father, we thank you for this blessed evening. पिता परमेश्वर, इस अच्छे से शाम के लिए हम धन्यवाद करते We are हैं. here in your presence. हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु. We thank you for your magnificent presence during the time of worship. आपके अनोखे उपस्थिति जो आराधना में प्रकट हुई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु. Thank you for reducing the burden of your people from their heart and their life. परमेश्वर लोगों के दिलों से, मनों से उनके बोझ को हल्का करने के लिए, निकाल देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं. submit ourselves unto your hand. हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण Holy करते हैं. Spirit, you do speak to your children. पवित्र आत्मा, आप ही अपने बच्चों से बात कीजिए. I hide myself under the cross. मैं अपने आप को क्रूस के तले छिपाती Let हूँ. the holy name of Jesus Christ alone be magnified. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र नाम ही महिमा हो जाए. In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ. Amen. आमीन. Amen. Without much introduction, we are going to a small topic called bond servant. थोड़ा भी परिचय देने के अलावा हम लोग एक सीधा एक विषय की ओर जाते हैं, वो है परमेश्वर का दास बनना. We all wanted to become a good person in Christ. हम सब ये चाहते हैं मसीह में एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए. Somebody else has a great desire to become greater in this world. कुछ और लोगों को ये इच्छा है कि वो महान व्यक्ति बन जाए इस दुनिया में. Shall we read one small portion? हम एक छोटा सा भाग पढ़े. Galatians chapter 5 verses 1. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला वचन. Galatians chapter 5 verses 1. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Bible says, बाइबल कहता है God had set us free. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया. Jesus had set us free from the bondage. यीशु मसीह ने हमें सारे बंधनों से हमें आजाद कर दिया. And He envisages, He entrusted. और उन्होंने हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखा, Stand firm on it. उसमें स्थिर रहो. And you know, during the ministry of Jesus Christ, यीशु मसीह की सेवकाई के समय पर many people had approached Him. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए. Couple of time back, कुछ समय पहले our translator sister had wrote 2 books. हमारे अनुवाद करने वाली बहन ने 2 किताबें लिखी. And for English Hindi service, इंग्लिश और हिंदी सर्विस के लिए. for your benefit, both are in English and Hindi. वो दोनों ही एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है. You are not happy, it seems. Okay, if you want to buy that, अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो you can get in touch with Amazon or Flipkart, वो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से आपको मिल सकते हैं. and you can see the name of that book as. वो आप उस किताब का नाम भी देख सकते हैं. Brother, can I see that book on this like your profile if possible? The Mighty Hand of the Rescuer. उद्धारकर्ता का सामर्थ्य हाथ. It is available, वो अवेलेबल है. not with us, but in Amazon and Flipkart. हमारे पास नहीं है, अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में वो मुफ्त Very limited copies are with us.
बहुत सारे कम कॉपीज हमारे पास भी है. Anyway, the church is having a passion to Hindi speaking people, English speaking. चर्च को, कलीसिया को बहुत पैशन है, लगाव है कि हिंदी बोलने वालों को, हिंदी भाषा में बात करने वालों से सुसमाचार बोलने के लिए. During the time of your birthdays or some special occasion, you can give that book as a free gift to somebody whom you love. उस समय आप किसी के बर्थडे के समय पर आप उस किताब को तोहफे के रूप में उनको दे सकते हैं. You can check in Amazon, it's available. आप अमेज़न में चेक कर सकते हैं, उसमें वहाँ है. Bible says, बाइबल कहता है stay in the freedom. आज़ादी में लगे रहो. When many had approached Jesus, Master, how am I? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए और पूछे, ओ हे गुरु, हम कैसे हैं? Why I had suggested or referred about the book for one reason. क्यों मैंने इस किताब को रेफर किया? एक कारण से. While after the book and well before its inauguration or publishing, we had approached many servants of God to provide a preface for that. उस बुक को पब्लिश करने से पहले हम बहुत सारे प्रभु के दास लोगों के पास गए उसके लिए एक प्रीफेस, छोटा सा आलेखन लिखने के लिए. Among that, Dr. P.G. Varghese uncle had given a preface. उस किताब में डॉक्टर पीजी वर्गीस अंकल जी ने भी एक प्रीफेस दे दिया. If you want to read a book, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो you can go to library, get one. आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं और एक ले सकते हैं. If you want to get a good one, अगर आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो it could available in market. वो एक आपको उसे बाजार में मिलेंगे. If you want to see a very good book, अगर आपको एक बहुत अच्छी किताब पढ़ना है तो here it is. That's what he says. यहाँ है वो, और उन्होंने ऐसा ही लिखा था उसमें. Normally he won't write a preface for a or recommendation to others for a very good book. पर मामूली तरीके में वो अंकल जी सब लोगों की पुस्तकों के लिए उस तरह बहुत अच्छी पुस्तक के प्रीफेस लिखने के लिए तैयार नहीं होते. Many had testified it is very good. बहुत सारे लोगों ने गवाही दी कि वो एक अच्छी पुस्तक है. In our life, we too wanted to have some testimonials. हमारी भी जिंदगी में हम लोगों को बहुत सारे गवाही होंगे. During the time of your passport verification, आपके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पर the police may inquire about your neighbors. आपके पुलिस लोग पूछेंगे आपके पड़ोसन से. They have to write a testimonial. उनको एक गवाही लिखना पड़ेगा. If you are going for any medication, अगर आप एक कोई इलाज ले रहे हैं तो our beloved brother, he's a part of like a medical science is available. हमारे प्यारे भाई वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. There are 2 assistant doctors are available here. यहाँ 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है. So all are like, I think most of the people are from medical side. बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में से है. You know, like you may write some testimonials to somebody. आप शायद किसी दूसरे लोगों के लिए टेस्टिमोनियल्स लिखेंगे. Similarly, इसी तरह when one guy had approached Jesus, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास गए, Jesus gave a wonderful testimony about him. यीशु ने उनके बारे में एक अच्छी गवाही दी. What was the testimony of वो Jesus? क्या थी गवाही जो यीशु मसीह ने दी? Gospel of John chapter 1 verses 47. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 47वां वचन. To my wonder, to no one else God had given such a wonderful testimony. मुझे चौंकने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने और किसी के लिए ऐसी कुछ गवाही नहीं बोली. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile. यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं. Guile means another form of guilt. No error. एक भी कपट नहीं, एक भी गलती नहीं. He's a sincere man. He's an honest. वो एक सच्चा इंसान है, वो एक सत्य होने वाला इंसान है. It's not from a father, priest or like a pastor. It's from Lord Jesus alone. He's testifying. इनको ये तारीफ
is best among his peace. इनको ये तारीफ किसी पास्टर से, बिशप से, प्रीस्ट से नहीं मिला, लेकिन वाकई ही सच्चे यीशु मसीह के मुंह से ये गवाही उनके लिए निकला। We too wanted to have such a testimony. हमें भी इस तरह की गवाही यीशु मसीह की ओर से मिलना है। During the ceremony of or when Dr. P.G. Varghese uncle was serving this church, जब पीजी वर्गीस अंकल जी यहाँ सेवकाई कर रहे थे, he ministered and said one of his wish. और उन्होंने यहाँ सेवकाई की और उन्होंने उनकी एक मन्नत इस कलीसिया में खुल के बताए। When I am going from this world, going out from this world, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा, I should be more like Jesus. मैं तो एकदम थोड़ा बहुत तो कम से कम यीशु मसीह के जैसा मुझे बनना I है। should be close, resemble to Lord Jesus. मुझे किसी न किसी तरह यीशु मसीह की जैसा बनना है। In my character, मेरे स्वभाव in में, my faith, मेरे विश्वास में, in my way, मेरे रास्ते in में, my approach. मेरे बर्ताव I में should be more resemble to Lord मैं Jesus यीशु Christ. मसीह की जैसा ही बनना चाहता हूँ। Let that to be our prayer as वो well. हमारी भी प्रार्थना ऐसा ही हो जाए। Bible says, बाइबल कहता है, who is a true servant of God? कौन है सच्चा परमेश्वर का सेवक, What are the specialities for them? उनकी खासियत क्या क्या है। And from last 2 months we were thinking or learning from ministers how we can do the ministry in a better way. पिछले 2 महीनों से हम ये ध्यान करते आ रहे हैं कैसे हम परमेश्वर की सेवकाई करें, कैसा एक अच्छा सेवक बने। Today we meditate on a born servant of Christ. आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के एक अच्छे दास के बारे For में। that shall we read Romans chapter 6 verses 16. उसके लिए हम पढ़ी रोमियों की पत्री, Book of Romans chapter 6 verses 16. रोमियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। Can we all read it together if you have a Bible? क्या हम सब मिलके पढ़े? अगर हमारे पास एक बाइबल है तो। Come on. 6 का Know 16। ye not क्या तुम that नहीं to जानते whom ye yield कि जिसकी yourself आज्ञा मानने की servant to obey, his servants to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Bible says, बाइबल कहता है, to whom you are yielding to, किसकी और तुम अधिक चाहते to हो, whom you are obedient to. तुम किसकी बात को बहुत मानते हो। Just for an example, उदाहरण के लिए we have 2 children. हमारे 2 बच्चे हैं, I am on one side मैं एक भाग में हूँ and she's on the other side. और माँ दूसरे भाग में है। तो At a time calling the same son, एक ही समय पर एक ही बेटे को एक साथ बुलाता है तो, son come here, बेटा यहाँ आओ, to whom he shall obey. और वो किसकी बात को मानेंगे। You may say, obviously, since I am the father, they may obey me. आप शायद बोलेंगे कि क्योंकि मैं पिता हूँ वो शायद मेरी बात पहले मानेंगे, But in general, लेकिन मामूली तौर पर at a time, for a child, if 2 members, they both are equal and responsible for them, if they are calling together at a time, एक बच्चे को माँ और बाप एक ही समय पर उन्हें बुलाता है तो it's very hard for them to take a decision उसको immediately. बहुत मुश्किल होता है कि फैसला लेने के लिए कि किसके पास जाओ। Similarly, इसी तरह at a time, एक ही समय पर when God and devils call a person, जब शैतान और परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है तो to whom you shall obey. और किसकी बात को वो मानेगा। Bible says, बाइबल कहता to है whom you are yielding to, किसकी बात तुम to अधिक मानोगे, whom you are inclining to. तुम किसकी और अधिक चाहेंगे तो We shall be a children, we shall be a servant to them. हम उसके ही दास बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। For an example, उदाहरण के लिए we are going to read हम पढ़ने वाले हैं book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण chapter 15, उसका 15वां अध्याय verses 12 to 17. उसका 12 से लेके 17 तक। Those who are attended in the morning, व्यवस्था विवरण Deuteronomy chapter 15, उसका 15वां अध्याय verses 12 to 17. उसका 12 से लेके 17 तक। The same passage is mentioned in Exodus chapter 21, verses 1 to यही 6. यही घटना निर्गमन की पुस्तक 21 21वें अध्याय में भी लिखा है, verses 1 to 6. 1 से लेके 6 वचन तक। Now we are going from Deuteronomy हम अभी पढ़ने वाले हैं व्यवस्था chapter विवरण 15, verses
12 onwards. 15वां अध्याय उसका 12 से 17 तक। And यदि if thy brother, an Hebrew man or an Hebrew woman, be sold unto thee and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock and out of thy floor and out of thy winepress of that way with the Lord thy God had blessed thee. Thou shalt give unto him. कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा सुनाता हूँ। Bible says, बाइबल कहता है, if an Hebrew bond servant is there for anybody, अगर एक इब्र या इब्रिन दास दासी किसी को है तो he or she shall serve him for 6 years. वो उसको अपने मालिक को 6 सालों तक सेवकाई करना On the पड़ेगा। 7th year, और 7वें साल में that is to be declared as an year of like a deliverance or freedom. उनके लिए छुटकारे का साल होगा, उनके लिए आजादी का साल होगा। Bible says, बाइबल कहता है till 6 year, 6 साल तक they should be their bond servant. वो उनके उसी मालिक के लिए गुलाम बन के And on रहेंगे। the 7th year, लेकिन 7वें साल में he shall set free. वो उसको आजाद करना है। When he departs from you, जब वहां से वो विदा होगा, do not simply send him off. यूं ही खाली हाथ उसे मत भेजो, Send him with a double portion. उसे दुगने भाग के साथ भेजना है। With flour, उसके with wine press. भेड़ बकरियों से खलिहान, In simple sentence, should provide the best of best to them. और आसानी में हम एक वाक्य में बोले तो उसको जो कुछ भी तुम दे सकते हो वो सब कुछ देकर उसे विदा करना है। Which indicates clearly, उससे स्पष्ट रूप से ये कहता है, even the Israelites, इसराइलियों के बीच they में were under the slavery of Egypt for 430 years. वो भी मिस्र के देश में 430 साल तक गुलाम थे, And God had redeemed you. और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। Similarly, इसी तरह no bondage on this earth कोई भी इस दुनिया के बंधन shall be made forever. वो हमेशा के लिए ना बने रहना है, One day that should be broken off. और एक दिन उसे टूटना ही है। Whatever the bondage it is, और जो कोई भी बंधन हो one day it has to be removed off. एक दिन उसे टूटना ही है। Bible says, बाइबल कहता है on the 7th year, that shall be the declaration of that freedom. 7वें साल में उसे स्वतंत्रता के साल होंगे, वो आजाद किए जाएंगे। If that word is true, अगर वो वचन सत्य है तो for sure India shall be set free in the forthcoming years. ओ भारत भी आगे आने वाले सालों में परमेश्वर से आजादी पाएंगे। The gospel, the fire of the gospel catch all the things. वो सुसमाचार की आग पूरी दुनिया को घेर देंगे, The captivity will be broken. सारे बंधन खुल जाएंगे। Here there are certain principles. यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं, For in detail we are going to learn it. उसे थोड़ी गहराई में हम सीखने जा रहे हैं। Book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक chapter 21, उसके 21वां अध्याय verses 1 to 6. उसका पहले से लेके When you 6 buy बजे। a Hebrew slave, he shall serve 6 years, and in the 7th he shall go out free for nothing. But if the slave plainly says, I love my master, my wife, and my children, I will not go free, then his master shall bring him to God, and he shall bring him to the door of the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall be his slave forever. फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल ले
तो वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत मेंत चला जाए। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो तो उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वो अकेला चला जाए। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपने पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। Bible says, बाइबल कहता है, here also talking about slavery. यहाँ भी गुलामी के बारे में बात करता है। Whenever India got republic, कब भारत स्वतंत्र हुए? 1947. सन 1947 में। When we got the freedom, हमें कब आज़ादी मिले? August 15th of. When we do celebrate our independence, कब हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं? thank you. All had at least given the answer. Otherwise, the people will think about yourself. 1947 August 15th, India got independence. सन 1947 अगस्त 15 को भारत को आज़ादी मिले। Till then, उस समय से India was under the captivity of, भारत गुलाम थे, under the British Columbia or like a, ब्रिटिश अधिकारियों के नीचे, and India got the republic on. और भारत को रिपब्लिक मिला। Okay. Someday we have 1956 Jan 26. जनवरी 26 सन 1956 में। I really appreciate your GK. मैं आपके जीके को बधाई देता हूँ। Somebody is very clever on that. बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी है। Okay. Anyway, Bible says, बाइबल कहता है, here there is a deliverance and independence. यहाँ भी एक छुटकारे के बारे में, एक स्वतंत्रता के बारे में कहता है। A master is having a slave. अगर एक मालिक को एक दास है, He can serve for 6 years. वो 6 वर्ष तक उनकी सेवा कर सकता है। If the master is kind enough to him, अगर उसका मालिक उससे पर उतना दया भरे होते हैं तो, at the age of young, और अगर वो जवान है तो, he had given a wife to him, उसको एक पत्नी भी मालिक ने दिया तो, and they had children. उनको बच्चे भी हुए। On the 7th year, और 7वें साल में, or after the 6th year, नहीं तो 6 साल होने के बाद, the slave can simply go off from that home. गुलाम यूं ही आजाद बन के उस घर से जा सकते हैं। But the wife and the children, लेकिन पत्नी और अपने बच्चे, they belong to वो किसका होता है? the master. मालिक का होता है। They cannot take the wife and children and go away. वो गुलाम अपने पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लेके नहीं जा सकते। In that point, अगर ऐसा है तो the slave still wants to be with the master. अगर गुलाम ये चाहता है कि अब भी वो उसी मालिक के नीचे Along काम with करे his तो, wife and children, अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ वही रहे तो, he could simply say one thing. वो सिर्फ एक बात कह सकता है। What he should say? उसे क्या कहना है? But if the slave plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go out free, then his master shall bring him to God, and he shall bring him to the door of the doorpost, and his master shall bore his ear through with and all, and he shall be slave forever. परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। सदा उसका सेवा करने के लिए he had pierced his ear. सदा उसकी सेवा करने के लिए उसे अपने कान को छेदना पड़ता है। What was the reason? क्या कारण है? The servant has decided क्योंकि वो दास ने फैसला किया, to stay in that house. मैं इसी घर में रहूंगा, You are my master. आप ही मेरे मालिक है, I don't want to leave you. मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, I have to stay here. मुझे यही रहना है। You are the good master. When I was alone, you had provided me a family. और आप एक अच्छा मालिक हो, क्योंकि
जब मैं अकेला था आपने मुझे एक परिवार भी दे दिया, You didn't treat me like a slave. आपने मुझे गुलाम के तौर पर कभी भी नहीं देखा, You have treated me in a well manner. आपने मेरी बहुत अच्छी ख्याल रखे, You were kind enough to me. आप मेरे ऊपर बहुत करुणा दिखाए, Now, I don't want to leave this place. इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता। If he says so, अगर वो ऐसा कहता है तो then the master or should take that one, him to the to the presence of अगर God. ऐसा है तो उसके स्वामी को उसको परमेश्वर के पास ले चलना है, Take a small thing that is called a type of small poker. और उसे एक चीज लेना पड़ेगा, उसको कहता है सुतारी, Shall make a hole on his ear. और उसके कान में सुतारी से छेद करना है। You know, like in our terminology, हमारी शब्द में बोले तो especially the Hindi speaking and English speaking community, हिंदी भाषा बोलने वाले और इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों पे we love to have tattoos on our body. हम लोगों को बहुत पसंद है अपने अपने शरीरों में टैटूस लगाने के लिए। If you have a tattoo on your body, you can just wave your hands and let us shout together one hallelujah. अगर आपके शरीर पे किसी भी हिस्से पर टैटू लगाए हुए तो हाथों को हिला के इस तरह हालेलुया बोल सकते हैं। I never expected it will be there in like the Kannada or the Tamil or the Malayalam service. मैंने But कभी not many hands I had seen. मैंने कभी नहीं सोचा कि कन्नड़ा सर्विस में, मलयालम सर्विस में इस तरह के लोग होंगे, लेकिन बहुतों ने हाथों को हिलाया। In the olden time, पुराने जमाने में first of all, Bible not encourages to put tattoo. बाइबल कभी इसका अनुमति नहीं देता कि टैटूस लगाने के लिए। If somebody is willing or forcefully putting one tattoo, अगर कोई जबरदस्ती टैटू लगाता है तो what it shows? क्या दिखाता है वो? Shall we read? हम पढ़े Galatians chapter 6 verses 17. गलातियों की पत्री 6वां अध्याय, And why we should not use tattoo? गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 17वां वचन, आगे को कोई मुझे दुख न दे क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। Bible says, बाइबल कहता है I carry the scars of Jesus on my own body. मैं यीशु के दागों को अपने ही देह में लेकर फिरता हूं। The word for scar here is यहाँ दाग माने तो stigma. स्टिग्मा का पद इस्तेमाल किया है। In other definition, वो एक ग्रीक पद है, It is- दूसरे अर्थों में it is called stick or prick. उसको कहता है छेद करना, नहीं तो लगाना, A mark incised or punched in. एक निशाना लगाना, एक चिन्ह को शरीर में लगाना कहता है। It simply shows the recognition or the ownership of that body. वो दिखाता है उस शरीर के मालिक कौन है। In our dress, what we wore, हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं, if it is a brand, there will be one brand name. अगर वो ब्रांड कपड़े हो तो उसके ब्रांड का एक चिन्ह होता है, A mark pricked in or branded upon the body. एक निशाना जो शरीर पर लगाया हुआ है। To ancient oriental usage, slaves and soldiers bore the name or the stamp of their master or commander, branded or pricked into their bodies to indicate what master or general they belong to. पुराने जमाने में गुलाम लोग, नहीं तो सैनिक लोग अपने अपने मालिकों को मालिक कौन है ये दिखाने के लिए कुछ चिन्हों को अपने शरीर पर लगाते हैं और निशानों को अपने शरीर पर लगाते हैं। And there were even some devotees who stamped themselves in the way with the token of their gods. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के निशाने शरीर पर लगाते हैं अपने अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। Here Paul indicates यहाँ पौलुस कहता है about a scar or a mark on his body. एक दाग के बारे में, एक निशाने के बारे में जो पौलुस के शरीर पर है। This stigma on his body, ये निशाना जो पौलुस के शरीर में है, that he's a born slave to Yeshua or Jesus. वो दिखाता है कि वो एक गुलाम है, सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह का गुलाम है। His master Jesus, even he's having scars on his body. उनका मालिक यीशु मसीह, उनके भी शरीर पे बहुत सारे घायल हैं। When he had crucified on the cross, जब वो क्रूस पर चढ़ाए हुए थे, his hands were pierced down, उनके हाथों में कीले लगाए हुए his थे, rib were open up, उनके दिल में लोगों ने छू
all these scars show चाकू that मार दिए। why there was a scar on the body of Jesus. क्यों यीशु मसीह के शरीर पर इतने घायल थे? It was simply just meaning that he had come to this earth to serve service to the humanity. ये यूं आसानी से बोले तो ये दिखाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे सिर्फ इंसानों की सेवकाई करने के लिए, इंसानों के सेवक के रूप में। His scar also come out from his having his flesh pierced on wood as a result of love and willing submission to serve. यीशु मसीह के शरीर का घायल इसलिए आया कि मानविकता थे कि वो इंसान के ऊपर जो प्रेम उन्होंने रखा उसके बदले में उनको जो अपमान मिला उसको दिखाता है क्रूस। Not my will, but yours be done. ओ पिता परमेश्वर, मेरा हित नहीं लेकिन आपका हित हो जाए। The Son of Man came to this not to serve but to serve. मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि दूसरों की सेवकाई करे, खुद सेवक बन के वो आए। Bible says बाइबल कहता है Jesus had scars on his body. यीशु मसीह के शरीर के में पूरे घायल थे। Paul had received some scars on the body. इसी तरह पौलुस ने भी अपने शरीर में कुछ दाग उठाए। It's not a physical scar. वो एक शारीरिक तौर की घायल नहीं, It's not a physical mark on his body. वो शारीरिक तौर पर दाग नहीं थे। On the body of Paul nothing was stamped. शरीर पौलुस के शरीर में देखने वाले कुछ भी निशाने नहीं But थे, he count himself. लेकिन वो अपने आप को गिनता था, I am a born servant of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का गुलाम हूँ, उनका ही सदा के लिए I have रहूंगा। an obligation. मुझे एक जिम्मेदारी I है, have to please my master. मुझे अपने मालिक को प्रसन्न As करना long है। as I live on this earth, जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा, I should do the will of my master. मुझे अपने मालिक की इच्छा को पूरी करना है। Jesus said, यीशु ने कहा, I have come to fulfill the will of the one who had sent me over here. मैं इस दुनिया में आए उस पिता की इच्छा को पूरे करने का जिन्होंने मुझे भेजा है। Similarly, इसी तरह Jesus sent out his disciples यीशु ने अपने चेलों को भी भेजा। in our generation. अब हमारी पीढ़ी We में have been called by Jesus, हम भी यीशु मसीह से बुलाए हुए हैं, and the same obligation is upon us. उसी जिम्मेदारी हमारे भी ऊपर सौंपा है। We have a responsibility हमें भी एक जिम्मेदारी है to serve the master. हमारी मालिक की सेवकाई करना। To which master we should serve? किस मालिक की सेवकाई हमें करना है? During the time of Elijah, एलिया के जमाने में the so-called people of Israelites, इस्राएल के लोग they fall into the idol worship. वो मूर्ति पूजा में फंस गए। The nation couldn't recognize to whom they are belong to. वो देश खुद नहीं जानते थे कि किसके थे वो। In Bible, 1 Kings chapter 17, since the time is too short, I am not going there. बाइबल में पहली राजाओं की पुस्तक 17वां अध्याय, समय बहुत कम है इसलिए मैं उसकी ओर नहीं जाता। During the time of Elijah, एलिया के जमाने में he came and asked one thing. वो आके एक बात पूछा, How long you shall put your legs into two boards? कितने समय तक तुम तो अपने अपने पाँव को दो नावों में लगाओगे? If God is your Yehoshua is your father, अगर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है, Jehovah is your master, अगर यहोवा तुम्हारा मालिक है, serve him. तो उनकी सेवकाई करो। Either Baal is your master, अगर बाल तुम्हारे परमेश्वर है तो serve him. उसकी सेवकाई करो। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, no man can serve two masters. कोई भी इंसान दो मालिकों की सेवकाई नहीं कर No man सकते। can serve God and Mammon. कोई भी मामोन और परमेश्वर की सेवकाई एक साथ नहीं कर सकते। Mammon in other ways, मामोन दूसरे शब्द में money. दिखाता है पैसे को। The people, somebody may say, I am just living to have some money. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए ही मैं जिंदा रहता हूँ। You know, if your stomach is full, आपको पता है कि जब आपके पेट भर जाता है तो whatever is so delicious in your eyes, जो भी आपके लिए बहुत रुचि देने वाले पदार्थ हो, somebody gives or serves you one more, अगर एक और वो उसी खाना आपको कोई देता है तो you won't have it. अगर आपके पेट भर दिया होता तो आप उसे नहीं खा सकते। You'll say, not now, I am fully. आप ऐसा कहेंगे कि आप नहीं बाद में खाएंगे। But somebody is having $1 million. लेकिन अगर किसी के पास $1 मिलियन पैसे है तो, If you have 10 lakh rupee, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो, somebody gives another 10 lakh, अगर कोई दूसरा आके और 10 लाख देते तो simply say,
Come on, thank you. लोग इस तरह कहते हैं कि और भी लेके आओ, और भी पैसा लेके आओ। Stomach is full, then it is full. जब पेट भर दिया जाता है तो भर दिया जाता है, When money is there for our need, then we will not be full. लेकिन हमारी जरूरतों के लिए अगर हमारे पास पैसा है भी तो हम तृप्त नहीं हो जाते। As long as we are living on this earth, इस दुनिया में जब तक हम रहते हैं, there are many masters who want to drive us. बहुत सारे मालिक होते हैं जो हमें चलाना चाहते हैं, But Paul has decided, लेकिन पौलुस ने फैसला किया, I have one master, मुझे एक मालिक है and I am here to listen to him. और मैं यहाँ हूँ सिर्फ उनकी Whatever बात को he पूरा says, करने। I am here to obey to him. जो भी वो मुझसे कहेंगे वो मैं पूरी तरह मान लूंगा। If you are like your hard-earned money is not waste. अगर आपके पास पैसे हैं तो वो यूं ही नहीं होते होंगे। If you get a good job, please do. अगर आपको अच्छा काम मिलता है तो प्लीज कीजिए। Whenever you get a promotion, do it. आपको कभी भी प्रमोशन मिलता है तो वो अच्छा है, But Bible never like stop it. लेकिन बाइबल उसको कभी रुकता नहीं। But money should not drive you. लेकिन पैसा आपको चलाना बिल्कुल नहीं It है, should not take your heart away from God. वो आपके दिल को परमेश्वर की ओर से दूर नहीं करना Do है। not live just the sake for it. वो सिर्फ पैसे के लिए आपको कभी नहीं जीना है। Bible says, बाइबल कहता है here the bond servant, यहाँ एक प्रभु का दास, he don't want to leave the master. वो अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता, He has to be taken into the presence. वो He has to be taken in the presence of God. उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना है, The master will make him to stand closer to the और उसके मालिक उसको इस तरह खड़ा कर देगा, lintel of a door, एक दरवाजे के फ्रेम के पास लेके called a doorstep. और कहता है कि उसके दरवाजे के फुट लिंटल, The master use a small instrument called वो मालिक एक छोटे से चीज की इस्तेमाल करेगा, awl. By this he will make a hole on the ear of और that वो person. सुतारी से वो उसके कान को छेद करेगा, The earlobe he will pierce. उस कान में उस सुतारी से छेद करेगा। When somebody's earlobe is pierced, जब किसी के कान को इस तरह छेद किया जाता है, what will come? क्या आएगा? Blood will come. लहू, खून आएगा। Bible says, बाइबल कहता है why to pierce? क्यों उसको छेद करना है? Why piercing? क्यों छेद करना है? Why a door? क्यों दरवाजा? Why an ear? और क्यों कान? To be continued. हम उसको जारी रखेंगे। So next Sunday, do not miss it. आने वाले संडे को मिस मत कीजिएगा। We will start one portion, we will wind up today, and we will continue. Why it has to be pierced? अब एक विषय के बारे में सोचेंगे और अगले हफ्ते बाकी हम जारी रखेंगे, क्यों उसे छेद करना है। Exodus chapter 12 verses 22. निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 22वां वचन। और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। Bible says, बाइबल कहता है during the time of the Passover, फसह के दिन, when God was about to take the captivity of Egypt from Israelites, जब इस्राएलियों को मिस्र के कैदी में से उसकी गुलामीपन से जब परमेश्वर छुड़ाना चाहता था, as he was about to send his 10th plague, और जब वो 10वीं बाधा को उस देश में भेजने वाले थे, he asked all the Israelites, उन्होंने सारे इस्राएलियों से ये पूछा, take a ram or lamb, एक मेमने को ले लो, cut it, उसको काटना है, take the blood, उसका खून निकालना है and put it over the door of your, और आपके दरवाजे के ऊपर उसे लगाना है। and every family और हर एक परिवार took the blood and put a spot on their door. इस तरह खून, थोड़ा सा खून निकाले और अपने अपने दरवाजों में उसे लगाए। Everyone, all the Israelites were hidden under or behind the door. और सारे इस्राएल के लोग इस तरह दरवाजे के पीछे छिपे थे। On that night, और उस रात में an angel of God appeared to that place. परमेश्वर का एक दूत उस जगह में उतर
करके आए। Wherever he had seen a mark of blood, जहां कहीं भी उन्होंने वो खून का निशाना देखा, without harming that house, he moved on. उस घर को कोई भी हानि पहुंचाए बिना वो वहां से चल गए। Wherever there was no mark of the blood, जहां कहीं भी वो खून का निशाना नहीं था, all the firstborns were killed. सारे पहलौठे मारे गए। And similarly, इसी तरह from the king to the servant, राजा से लेकर वहां के दास तक all the firstborns, सारे पहलौठे humans, और इंसानों के, their cattle, उनके जानवरों के, and all the animals, उनके सारे जानवरों के, firstborn were killed. उसके पहले बच्चे पहलौठे कहते हैं, वो सब मारे गए। But some houses kept preserved लेकिन उसी रात में कुछ घर बिल्कुल सुरक्षित रहे। who were preserved, वो कौन सुरक्षित रहे? whichever the doors were having the mark of blood. जिन कहीं भी वो दरवाजों पर खून का निशाना था, वो सभी परिवार और घर सुरक्षित रहे। Why there is a piercing? क्यों छेद करना है? As Paul said, पौलुस ने कहा, I have a mark on my body मेरे शरीर पर मैंने एक दाग रखा है, that shows my loyalty to whom I am going to वो serve. मेरे वफादारी को दिखाता है जो मैं अपने यीशु मसीह से रखता हूँ। I do not have so many masters. मुझे बहुत सारे मालिक नहीं है, Only one master. मुझे एक ही मालिक है। That master has already pierced for me. वो मालिक मेरे लिए ऑलरेडी अपना जान दे चुका। Shed his blood for me. उन्होंने अपना लहू मेरे लिए बहाया, Redeemed me. उन्होंने मुझे छुड़ाया, Saved me. उन्होंने मुझे बचाया। And now और अब I have decided to follow and live for him. मैंने फैसला किया कि उसी मालिक का मैं पीछा करूंगा। Couple of years back, कुछ सालों पहले he had been pierced with the nails of Roman government. बहुत सारे यीशु मसीह को कीलों से मार दिए गए रोमियों के अधिकारियों ने। Now anything he had left out, अगर कुछ दर्द उन्होंने सहने के लिए छोड़ दिया तो that I carry on my body. That was the commitment of Saint Paul. वो मैं अपने शरीर पर लेता हूँ, वो ही पौलुस प्रेरित का वो फैसला था। That is called piercing. उसको कहता है छेद करना। That means उसका अर्थ to whom this slave belongs to. किसका मैं किसका हूँ, किस मालिक का हूँ मैं। Do you have a mark on you? क्या आपके भी शरीर पर कुछ दाग है? I'm not talking about the mole, which the black or some other moles or the birthmarks you have on your body. जो जन्म के निशाने होते हैं, ब्लैक बर्थमार्क से ब्लैक निशाने होते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहता। When you accept Jesus as your savior, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेंगे, when you are accepting him as the Lord, जब आप उनको अपना परमेश्वर मानेंगे, when you like ask for a cleansing of your sins, जब आप अपने पापों को धोने के लिए उनसे मांगेंगे, there is a mark on you. आपके ऊपर भी एक निशाना लगाया जाता है। It's called the seal, the mark of by the blood of Jesus. उसको कहता है यीशु मसीह की लहू से मुहर लिया जाना। Who has been marked, जो कोई भी उस निशाने को है, who has put a seal, उन जिनके भी माथे पर वो निशाना है, Bible says बाइबल कहता है the angel पर स्वर्गदूत or the one who had come to kill जिन्होंने सब लोगों को मार डालने के लिए आया था, left alone them. वो उस घर को छोड़ के आगे चले They गए। deviated from that path. वो उस घर को छोड़ के आगे चले गए। If the God's angel couldn't touch those houses, अगर स्वर्गदूत परमेश्वर का दूत उस घर को छू नहीं सके तो how much more the devil will go flee Lord, from your कितना place. अधिक शैतान आपके घर को छोड़ के भागेंगे। He can't, even the angel of the God cannot come closer to that house. अगर स्वर्गदूत उस घर के पास में नहीं आ सकते तो Why? क्यों? There is a mark of blood upon that door. क्योंकि खून का एक निशाना उस घर के सामने है। Brother, sister, भाइयों बहनों, do you have a mark of blood in your life? क्या आपके भी शरीर पे जिंदगी में खून का एक निशाना है? If not, अगर नहीं है तो that indicates to whom you belong to. वो दिखाता है आप किसके दास हो। If you have a mark on your life, अगर आपकी जिंदगी में एक निशाना है तो, mark of blood in your life, एक खून का निशाना है तो indicates वो दिखाता who है is your owner, कि वो ही आपका who मालिक है। backs up you, यीशु मसीह ही आपका who मालिक है। backs up you, यीशु मसीह आपको who stands लेगा। closer to you. यीशु मसीह ही आपके पास खड़ा होगा। God, the creator of everything, ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, if he stands with you, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो nothing can come against you. कोई भी आपके विरोध में नहीं आ सकता। Shall we close our eyes and pray for a while? हम आपके अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। Why to pierce? वो क्यों छेद करना है? Bible says बाइबल कहता है, it indicates वो दिखाता है, the ownership, वो
मालिक the कौन है, possession वो किसका to whom वारिस we है, are belong to. किसका है हम. Lord, परमेश्वर, till my day, वो आज तक there were many masters on me. मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी में बहुत सारे मालिक थे. Sin had ruled over me. पाप मेरे ऊपर राज करता था, Money had ruled over me. पैसा मेरे ऊपर राज करता रहा, Unwanted things have ruled over me. बहुत सारे अनजाने चीजें मेरे ऊपर राज करता रहा. As that servant said unto his master, जिस तरह वो दास ने अपने मालिक से कहा, today I declare to the lovely master Jesus, ओ मैं अपने प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह से कहता हूँ, you are the only one master whom I wanted to serve. आप ही मेरा इकलौता मास्टर मालिक है जिनकी मैं सेवकाई करना चाहता हूँ. Carry the scar Yes, and the Lord. mark of Jesus on my मैं body. यीशु मसीह का दाग अपने शरीर पर उठाना चाहता I'm a हूँ. born servant of Christ. मैं यीशु मसीह का दास हूँ. I have come to this earth to fulfill the purpose of my मैं इस master. दुनिया में आई परमेश्वर यीशु मसीह के हित को पूरा I करने have के been लिए. covered by the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के लहू से छिपाई हुई No हूँ. devil, no evil has any Yes, power Lord. or authority over me. कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार की ताकत मुझ पर जय My नहीं पा house सकते. is under the blood and coverage of Jesus. मेरा पूरा घर और घराना यीशु मसीह के लहू के No नीचे है. plague can come near to my कोई dwelling भी place. बाधा मेरे रहने के स्थान पर पास नहीं आ सकती. Many may fall on my side. बहुत सारे लोग मेरे एक भाग में Thousands, गिरेंगे. 10,000 shall fall on my left. 10,000 मेरे दाएं बाएं साइड पर गिरेंगे. Nothing shall come Yes, near to Lord. me. लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आ Because सकते, you are my refuge. क्योंकि आप भी मेरे You are उद्धार my करता है. rock. आप ही मेरा You are my परमेश्वर है. salvation. आप ही मेरा उद्धार You are करता my है. redeemer. आप ही मेरा You छुड़ाने are वाला the one है. who stands by me. और आप ही मेरे लिए जो राज करता है. Thank you, Jesus. परमेश्वर यीशु Thank मसीह, you for being धन्यवाद. with your children. आपके बच्चों के साथ रहने के लिए धन्यवाद. Help your people. आपके जन को आप सहायता कीजिए, Serve you. तो आपकी सेवकाई करने के लिए मदद Today we कीजिए. decide आज के दिन to serve you alone, and you shall be the So, single master for us. सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवकाई करने के लिए हम सबको कृपा दे दीजिए प्रभु. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. आमीन. God bless you. यीशु मसीह आशीर्वाद करे. The same